اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ جب میں بہت چھوٹی تھی، 17-18 سال کی، تمہاری نظر میں بیوقوف بچہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ، بہت آسان ہوتا تھا نا تمہارے لیے کسی کی دل آزاری کرنا، یہ سوچے بغیر کہ دوسرے کے بھی کچھ احساسات ہو سکتے ہیں۔ سوچتے سوچتے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ماضی کی گہرائیوں میں کھو گئی، جب وہ ایک شوخ و چنچل اور شرارتی سی لڑکی تھی۔ نہ گزرے ہوئے کل کا غم تھا، نہ آنے والے کل کی فکر۔ بڑے بھائیوں اور ماں باپ کی لاڈلی اور چہتی بیٹی جب کھلکھلا کر ہنستی تھی تو گویا چہرے پر گلاب کھل اٹھتے تھے۔ اپنے بچپن کی دوست سارا کے ساتھ جب دونوں لان میں سائیکل چلایا کرتی تھی اور کبھی کبھی گیٹ سے باہر بھی نکل جاتی تھی تو امی کی ڈانٹ سننا پڑتی کہ خدا کا خوف کرو، اب تم بچی نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم نگاہ بچا کر نکل ہی جاتے تھے۔ میں سارا سے مخاطب ہوتی، یہ بھی خوب ہے کہ جب اپنی مرضی کرو تو تم بچی نہیں ہو اور گھر کے کاموں میں دل لگاؤ، بڑی ہو گئی ہو، اور جہاں کسی بات میں بولے تو پھر فوراً چپ کرا دیا جاتا ہے کہ بچے نہیں بولتے بڑوں کی باتوں میں بڑبڑاتی رہتی اور سارا ہنستی رہتی میری باتوں پر۔ ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ایک بڑا خوبصورت سا بنگلہ تھا جس کا گیٹ ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا، لیکن آج جب میں اور سارا ایک دوسرے کے پیچھے سائیکلنگ کرتے ہوئے تیزی سے گزر رہے تھے تو ایک دم میرے پیر بریک پر تھم گئے۔ میرے پیچھے سارا گرتے گرتے بچی۔ تو یہ ہے الینا، یہ کیا حرکت ہے؟ چلتے چلتے ایک دم رک گئی، اور یہ کیا حرکت کر رہی ہو؟ کسی کے گھر میں جھانکنا کتنی بری بات ہے۔ مجھے تو جیسے سارا کی آواز سنائی دے رہی تھی اور میں کھلے ہوئے سیاہ گیٹ کے اندر کھڑی کرولا کے اندر بیٹھتے ہوئے ڈیشنگ اور سمارٹ سے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں تو اسے بھوت بنگلہ سمجھ رہی تھی، یہاں لوگ رہتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا معمول بن گیا کہ کالج سے آتے جاتے بنگلے کا جائزہ ضرور لیتے تھے۔ میں اور سارا لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ سارا، تم نے دیکھا یہ کتنا ہینڈسم شخص ہے؟ میں تو حیران ہوں، بالکل ہیرو کی طرح۔ بس سارا جل کر بولی، ایک تو ہر ایرے غیرے کو دیکھ کر تمہارا تبصرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تم پتہ نہیں کس دنیا کی باسی ہو، لگتا ہے دل نہیں ہے تمہارے سینے میں۔ دن گزرتے گئے، ہم اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں میں جب بھی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتی تو گویا ایک نظر ڈالنا ضروری سمجھتی تھی۔ امتحان سر پر تھے اور پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ امی جوس نکال کر پلاتی کہ میری بیٹی کمزور ہو گئی ہے پڑھ کر۔ سارا اور میں اکثر مل کر تیاری کیا کرتے تھے۔ سارا بالکل ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میں سیکنڈ ایئر میں آ گئی۔ انہی دنوں میں جب میں اور سارا شاپنگ کر کے آئے تو لان میں بھائی جان کے ساتھ اس ڈیشنگ سے شخص کو دیکھ کر تو جانو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ گر پڑے۔ اگر سارا نہ سنبھال لیتی تو میں تو گر گئی ہوتی۔ کچھ چل کر اور کچھ بھاگ کر ہم دونوں نے لان عبور کیا تو امی ہماری بوکھلائی ہوئی حالت دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی، وہ امی وہ بھائی جان کے ساتھ لان میں کون ہے؟ میں نے پھولی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ فرحان، بھائی جان کا کوئی اسکول کے زمانے کا دوست ہے، یہی ہمارے گھر کے قریب ہی گھر لیا ہے۔ فرحان سے ملاقات ہوئی تو ملنے چلے آئے، لیکن تم کیوں پریشان ہو؟ امی نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی امی، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، اور یہ جان کر کے تم بھائی جان کے بچپن کے دوست ہو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا کہ بھائی جان تمہارے گھر یا تم ہمارے گھر، اور تو اور ابو اور چھوٹے بھیا سے بھی تمہاری خوب نبھ رہی تھی۔ بس ایک میں ہی تھی جو دور دور سے تمہیں دیکھتی رہتی تھی، یا کبھی کبھی جب چائے سرو کرتی تو تم ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈال لیتے تھے اور مجھے اپنی جانب دیکھتے پا کر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لے آتے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہارا نام شارق ہے، شارق احمد۔ حال ہی میں تمہارا اس شہر میں ٹرانسفر ہوا ہے اور تم کالج میں پڑھاتے ہو۔ ڈاکٹریٹ کی تھی تم نے۔ امی ابو کا انتقال ہو چکا ہے، صرف ایک بڑی بہن ہے جو اسٹیٹ میں رہتی ہے۔ مجھے تمہارے اکیلے پن پر واقعی بڑا رحم آیا۔ میں اکثر سارا سے تمہارا ذکر کرتی، بلکہ ہماری گفتگو کا زیادہ تر موضوع تم ہی ہوتے تھے۔ کتنی اچھی تھی تمہاری پرسنالٹی، عجیب سا سحر تھا تمہاری شخصیت میں۔ توبہ کرو، وہ بھائی جان کے دوست ہیں، تمہارے لیے لائق احترام۔ سارا مجھے چھیڑتی تو میں کیا کہہ رہی ہوں، عزت کرتی ہوں ان کی۔ میرے جواب پر سارا چپ ہو جاتی۔ ہمارے لان میں ایک طرف آسٹریلین طوطوں کا پنجرا تھا، میں اور سارا انہیں دانا ڈال رہے تھے اور کسی بات پر ہنستے بھی جا رہے تھے۔ تم فرحان بھائی کے ساتھ اندر آ رہے تھے، مسکرا کر ہمیں دیکھنے لگے، اور میں تمہیں اس طرح دیکھ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور تم میری اس حرکت پر بوکھلا گئے۔ ایک دم بھائی جان سے مخاطب ہوئے کہ الینا کے مزاج میں بچپنا بہت ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا تمہارا یہ تبصرہ، اور پھر اسی طرح آتے جاتے ملتے جلتے چائے پیتے ہوئے تم اکثر مجھے ہائے بیبی کہتے تو میں اندر تک سے جل جاتی۔ پتہ نہیں کون سی روح سمائی ہوئی ہے تمہارے اندر، میں تمہیں بچی لگتی ہوں؟ میں بڑبڑاتی ہوئی چلی جاتی۔ ایک دن ہم لان کی سیڑھیوں پر بیٹھے اپنی دوستوں کی باتیں کر رہے تھے کہ چھم سے تمہارا خیال دل میں آ گیا۔ یہ شارق احمد مجھے بالکل لفٹ نہیں کراتے، ظاہر ہے فرحان بھائی کی دوست ہیں، تمہیں بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے نا؟ اور میں دوست ہوتے ہوئے بھی سارا کو یہ نہ
बता सकी कि मैं तुम्हें अपने दिल में बहुत ऊंची जगह बिठा चुकी हूँ। अगर कभी तुम मुझसे मुस्कुराकर बात कर लेते थे तो गोया वो लम्हात मेरे लिए किसी खजाने से कम ना होते थे। हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद अम्मी अबू तो बड़े अब्बा के पास यूके चले गए। अम्मी ने मुझे बहुत ले जाना चाहा, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि अभी नहीं जाऊंगी, आप होकर आ जाएं। अम्मी अबू के जाने के बाद तो फरहान भाई और तुम्हारी महफिलें ज्यादा ही जमने लगी। तुम कॉलेज के बाद अक्सर हमारे यहाँ नजर आते, फिर काफी दिन हो गए तुम दिखाई ही नहीं दिए। बड़े भाई जान से पूछने की हिम्मत ही ना हुई। एक दिन यूं ही सारा के घर से आते हुए तुम्हारे घर के गेट पर नजर पड़ी तो खुला हुआ देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, बिना सोचे समझे अंदर चली गई। इतना खूबसूरत लॉन और फिर कॉरिडोर से गुजरते हुए आहिस्ता कदमों से चलते हुए अंदर आई। नौकर सफाई कर रहा था, तुम सामने से आ गए। तुम्हारे चेहरे पर फैली हुई बेजारी की लकीरें साफ नजर आ रही थी, माथे पर बड़े बल, और फिर तुम्हारा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। ये क्या? मैं हैरान होकर तुम्हें देख रही थी कि मुझे देखकर खुश होने की बजाय तुम्हें मेरा आना बुरा लग रहा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? निहायत खुश्क लहजे में गोया हुए। घर जाइए। और मैं एकदम से इस सूरत हाल से परेशान मुंह से एक लफ्ज ना निकल पाया। जी वो मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो गेट खुला देखा तो यहाँ आ गई। बहुत खूब, शारिक इस्तेहजाया अंदाज में बोले। किसी का भी गेट खुला हुआ देखेंगी तो आप अंदर चली जाएंगी? मैं तुम्हारा ये रूप देखकर परेशान हो गई, आंखें एकदम भर आई, खुद पर काबू नहीं रहा, उल्टे कदमों अपने घर की तरफ भागी और अपने कमरे में आकर ठहरी। या अल्लाह, इतनी बेइज्जती! क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? जरा भी तो लिहाज नहीं किया। और अपनी इस खातिर पर जो तुम्हारे घर जाकर हुई, मैं बहुत दिनों उदास रही। फिर मौका पाते ही सारा से दिल की भड़ास निकालनी चाहिए। सुनो सारा, बालों में क्लिप लगाते हुए सारा ने जवाब दिया। ये बताओ, क्या मैं बहुत बुरी लगती हूँ? क्या मतलब? सारा वाकई नहीं समझी। वो भाई उनके दोस्त है ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं समझते, बात भी ठीक तरह से नहीं करते। तुम्हें कैसे पता चला? सारा ने टटोलती हुई नजरों से मुझे देखा। ऐसे ही बस मैंने अंदाजा लगाया है। वो इस दिन की अपनी बेइज्जती की बात गोल कर गई, क्योंकि उसे पता था कि सारा ये बात जाकर जरूर अम्मी से कह देगी, या शायद मेरी अना और खुददारी आड़े आ रही थी। सारा भी बड़ी तेज थी, फौरन ताड़ गई। सच बताओ, तुमने उनसे कुछ कहा था क्या? भला वो कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी? और फिर मैं हार गई, दिल जो भर आया था इस वाक्य की वजह से। सारी बात सारा को सुना दी और मेरी इस बात पर हैरानी से मुझे देखे गई और फिर एकदम बोली, कोई जरूरत नहीं है उन्हें चाय वाय देने की, और तुम उनसे दूर रहा करो। और फिर वाकई में उनसे दूर ही रहने लगी और कोशिश करने लगी कि अगर उनसे सामना हो तो उनकी तरफ निगाह उठाकर भी ना देखूंगी। मेरे इस खफा से रवैये को भी तुमने अहमियत ना दी, बल्कि तुमने आना भी कम कर दिया। फिर सुना है कि आजकल तुम प्रोफेसर हिना के साथ काफी देखे जा रहे हो। ये खबर सारा की बहन फिजा ने दी, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसने बताया कि डॉक्टर शारिक का मैडम हिना से अफेयर चल रहा है। स्टूडेंट्स को तो ऐसी बातों की खोज रहती है, जहाँ टीचर की किसी मेल टीचर के साथ फ्रेंडशिप देखी और राय का पहाड़ बना दिया, और तुम्हारा तो वाकई पहाड़ निकला। इनकी खास फ्रेंडशिप है मैडम हिना से, लगता है शादी कर रहे हैं उनसे। फिजा बोले जा रही थी, ये सोचे बगैर कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। फिर मैं रुकी नहीं और दिल पर एक अजीब सा बोझ लेकर घर आ गई। इस बात को काफी महीने गुजर गए। अब्बू और अम्मी वापस आ गए थे। अम्मी एक दिन पूछ ही बैठी, ये तुम्हें आजकल क्या हो गया है? ना खाना ठीक से खाती हो और ना ही कहीं आउटिंग की जिद करती हो, हर वक्त कमरे में बंद। चलो उठो, चेंज करो। सारा अभी आई थी, तुम्हें पूछकर चली गई, तुम सो रही थी। अब क्या बताती अम्मी को कि उनकी लाडली को इश्क हो गया है, वो भी एक तरफा। अगले दिन में और सारा बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। सारा मेरे चुप रहने से बोर होने लगती थी, वो मेरी वाहिद हमराज थी। यार अलीना, अब बस भी करो, कब तक लोगों को मनाओगी? ये अंकल टाइप लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। मेरी हंसी निकल गई। सुनो, लॉन का समर कलेक्शन आया है, चलें? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने बेजारे से जवाब दिया। अरे हाँ, सारा चीखी। याद आया, कल फिजा की यूनिवर्सिटी में फंक्शन है। फिजा कह रही थी अलीना को भी ले आना, खूब इंजॉय करेंगे। कंसर्ट है, बड़े बड़े गुलकार आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को उम्मीद की कोई किरण हाथ आ गई हो, या शायद तुम्हें प्रोफेसर हिना के साथ देखने का शौक हो रहा था, या फिर तुम्हें देखे काफी दिन बीत गए थे। बहरहाल जो भी था, मैंने फौरन हामी भर ली। अम्मी ने जो काफी दिन बाद मेरे चेहरे पर रौनक देखी तो झट जाने की इजाजत दे डाली। इधर अब्बू ने ताया अब्बू के साथ यूके में अपना बिजनेस सेट कर लिया था। फरहान भाई, भाभी और बच्चों के साथ यूके जा रहे थे। छोटे भैया के एग्जाम्स हो रहे थे। दिन बड़े बोर गुजर रहे थे कि ऐसे में यूनिवर्सिटी के फंक्शन में इन्वाइट किया जाना बड़ा अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी में बहुत गहमा गहमी थी। सारा मेरा हाथ पकड़े मुझे एक तरफ घसीटे चली जा रही थी। क्या है, छोड़ो भी, अभी मेरा जुमला मुंह में
ही था कि सामने से तुम और हिना आते हुए नजर आए। लग रहा था कि दोनों में काफी बेतकल्लुफी है। तुम मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे और फिर मैडम हिना तुम्हारी किसी बात पर जोर से कहका मारकर हंसी थी। मुझे उनसे जेलसी महसूस हुई। यकलख्त मुझे सामने देखकर तुम ठटके। ये शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे तुम यूं पास से गुजर गए गोया जानते ही ना थे। और अपने इस बुरी तरह इग्नोर किए जाने पर अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। कम से कम बात ही कर लेते या हिना से मेरे दोस्त की बहन कहकर तारुफ ही करवा देते, या कुछ नहीं तो सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा ही देते। लेकिन तुमने इनमें से कुछ भी नहीं किया। शारिक अहमद, तुम्हारी आंखों में शनासाई की लहर तक न आई। सारा ने हल्के से मेरा हाथ दबाया जैसे तुम्हारे इस सलूक पर तसल्ली दे रही हो। फिर मैं वहाँ रुकी नहीं, फौरन सरदर्द का बहाना करके सारा के साथ घर आ गई। मेरी वजह से सारा का प्रोग्राम भी खराब हुआ। फिर फिजा की जुबानी ही पता चला कि तुम हिना के साथ छुट्टियों पर गए हो और ये कि शादी कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए सब्र कर चुकी थी और तुम्हें भूलने की नाकाम कोशिशों में लग गई। तुम छुट्टियों से वापस आए तो पता चला कि तुम्हारे साथ हिना नहीं थी। फिजा से ही पता चला कि वो कुवैत चली गई है अपने पेरेंट्स के पास। बकौल स्टूडेंट्स के इन दोनों में बनी नहीं, ब्रेकअप हो गया है। जाहिर है ऐसे आदमी के साथ कौन रह सकता है। मैं बुड़बड़ाई। क्या? फिजा बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। इन्हीं दिनों जब अब्बू आए हुए थे तो मैं अब्बू के साथ घर की कुछ चीजें लेने जा रही थी। तुम गाड़ी अंदर ले जा रहे थे, फौरन रोककर उतरे। अब्बू ने भी गाड़ी रोकी, उतरे। तुम बड़े तपाक से अब्बू से मिल रहे थे, सबकी खैरियत पूछ रहे थे और फरहान भाई के आने के बारे में अब्बू भी बड़ी दिलचस्पी से सब तफसीलात तुम्हें बता रहे थे। और मैं गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि इस शख्स के कितने रूप हैं। और हिना के केस के बाद तो मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, अपने आप को तुम्हारे खिलाफ करती रही। और तब चौंकी जब अब्बू ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा। अब्बू को उनकी हकीकत का क्या पता, मेरे दिल में एक अजीब सी खलिश रहती थी। तुम्हारे लिए नेगेटिव फीलिंग के बावजूद तुम्हें दिल से निकाल नहीं पाई थी। फिर बहुत सारे दिन, महीने, साल ऐसे गुजर गए जैसे जिंदगी में आए ही न थे। अम्मी का प्रेशर मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। शादी कर लो अलीना, तुम्हारे अब्बू के बहुत अच्छे जानने वाले हैं। लड़का दुबई में डॉक्टर है और सबसे बड़ी बात ये कि खुद उन्होंने कहा है तुम्हारे लिए। लेकिन अब अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी, सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हम। सारा की शादी हुए भी 5 साल हो गए थे, उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। वो जब भी आती मेरी शादी पर जोर देती और मैं टाल देती। बड़े भाई को यूके की आबो हवा रास ना आई, लिहाजा फैमिली के साथ वापस आ गई। छोटे भैया ने MBA के बाद अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था, वो भी अपनी फैमिली के साथ सेट हो गए। अम्मी मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहने लगी थी, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे बाद कोई आंखों को जचा ही नहीं। मेरे साथ तुम्हारा सलूक बेजारी, इसके बावजूद पता नहीं कब और कैसे तुम दिल में खूब गए थे। और मैं अपनी अना के खोल में बंद फरहान भाई से तुम्हारे बारे में कभी पूछ भी ना सकी, और फिर पूछ लेने से हासिल भी क्या हो जाना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जीने का ढंग सीख लिया। भाईजान के तवज्जो से मुझे बड़ी अच्छी जॉब की ऑफर हुई, जिसे मैंने फौरन कबूल कर लिया। हालांकि छोटे भैया ने कई बार मुझसे कहा कि ऑफिस आ जाया करो, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। लेकिन मुझे तो जैसे मुश्किलात अच्छी लगती थी। जबकि अम्मी काफी नाराज हुई कि फरहान को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है और मुझे प्यार में सबने बिगाड़ दिया है। जिंदगी एक नए रुख पर चल पड़ी थी। बड़े भाई और भाभी बातें कर रहे थे, मैं काफी बना रही थी कि मुझे तुम्हारा नाम सुनाई दिया। मेरे हाथ कुछ रुक से गए। भाई कह रहे थे शारिक आया हुआ है, आज खाने में जरा एहतमाम कर लेना। अच्छा, कब आएंगे ये हजरत? भाभी हंस कर बोली, ये शादी क्यों नहीं कर लेते, घर में भी आराम मिलेगा और अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इतनी स्टैब्लिश्ड फैमिली है, क्या कमी है उनमें, या फिर पहले ही शादी कर चुके हैं? नहीं भाई, कहाँ की है शादी, अजीब आदमी है, आज से नहीं शुरू से ही ऐसा है, अपने आप में मगन रहने वाला। मैंने पूछा था, एक बार लगा था कि कोई है उसकी जिंदगी में, उसने कुछ नहीं बताया। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा दोबारा पूछना। तुम भी किसी को चाह सकते हो, बड़ी हैरत की बात थी ये मेरे लिए। शाम को भाभी ने खाने पर खासा एहतमाम कर डाला। भाई ने मुझे इतनी बार बुलाया कि आखिरकार आना ही पड़ा। खाने की टेबल पर तुम, भैया, भाभी और अम्मी के साथ खामोश से बैठे थे। अम्मी काफी देर से तुम्हारा जायजा ले रही थी, आखिर बोल पड़ी, क्या बात है शारिक बेटा, बहुत खामोश हो? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। तुमने बड़ी आहिस्तगी से जवाब दिया, इसी अंदाज में जो तुम्हारा खासा था। भाईजान हंस कर बोले, भाई शादी कर ले, कब तक अकेला रहेगा? तुम मुस्कुरा देते, कभी कभी सरसरी से नजर मेरे ऊपर डाल लेते। सोच रहे होंगे कि अब मैं तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराती नहीं, ना ही कोई बात करती हूँ बकौल तुम्हारे। ऊट पटांग बातें जब कहने और सुनने को कुछ रह ही ना जाए तो खामोशी ही बेहतर होती है। और फिर खुददारी का भरम भी तो रखना होता है। फिर जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खाना खाकर मैं तो उठकर चली गई। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या बातें हुई। दिन रात एक जैसे
जैसे गुजर रहे थे। जिंदगी में कोई उमंग दिलचस्पी जैसे नजर ही नहीं आती थी। फिर इन्हीं बोर दिनों में मैंने फैसला कर लिया कि मैं बड़े अब्बा के पास चली जाऊं। वैसे भी वो मुझे बहुत याद कर रहे थे। अपनी बेटी सुमेरा की शादी के बाद बिल्कुल अकेले हो गए थे। सिवाय अम्मी के किसी को एतराज ना था बकौल अम्मी के। पहले तुम्हारी शादी होगी, बाद में कुछ और सोचना। लेकिन मैं सोच चुकी थी, अब्बू और भाईजान के साथ मिलकर फैसला कर चुकी थी। ऐसे में तुमने मेरी जिंदगी के ठहरे हुए पानी में गोया पत्थर फेंककर हलचल मचा दी थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला करती, भाभी की हंसती हुई शरारती आंखें, अम्मी का मुतमईन और पुरसकून चेहरा बहुत कुछ कह गया। तो गोया मुझसे बात करने से पहले तुम मेरे घर वालों से मुझसे शादी के बारे में कह गए थे। जब भी डिनर वाले दिन तुम काफी देर तक बैठे रहे थे, उसी दिन ये सब बातें सबके दरमियान हुई थी और तुम आज मुझसे पूछ रहे थे। मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया और सेल फोन बंद कर दिया। आंसू थे कि बहे चले जा रहे थे। लगता था कि आंसुओं का खजाना संभाल कर रखा हुआ था। क्यों आ रहे थे ये आंसू मेरी आंखों में? क्या इसलिए कि मैं तुमसे तुम्हारे जैसा सलूक करने वाली थी, या अना पे लगने वाली पुरानी चोट रुला रही थी? मैं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी, गोद में फोन पड़ा था, आंखों पर हाथ रखे मैं रोए जा रही थी। हल्की सी आहट पर मुड़कर देखा तो शारिक अहमद सर पर खड़े थे। मैं तो शायद तुम पर बरसने के लिए तैयार बैठी थी। आपको हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? आप समझते क्या है खुद को? जब और जैसा चाहेंगे वो हो जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? शारिक मुस्कुराकर गोया हुए, वही मुस्कुराहट जिस पर मैं जी जान से फिदा हो गई थी। मैं एकदम लड़खड़ाने लगी, फिर हिम्मत करके बोली, डॉक्टर हिना से शादी क्यों नहीं किया आपने? क्यों क्यों करता भाई? शारिक बोले, एक तो शादीशुदा बच्चों की अम्मा और मेरे अजीज दोस्त की बीवी, पर आप उनके साथ तो होते थे ना। बहुत कुछ सुना था आपके बारे में। मैंने खजालत मिटाई। अरे वो कोई माइग्रेट कर रही थी, उनके शोहर की जॉब वहीं थी, बड़ी मुश्किलात उठाकर तो वो जा सकी हैं। जाहिर है सारे इंतजामात मैंने ही करवाए थे। फिर लोगों को तो आदत होती है बातें बनाने की। आपने कभी तरदीद क्यों नहीं की? मैं फिर बोली, क्या जरूरत थी? शारिक अहमद एतमाद से बोले, और वो मुझसे बेजारी? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। तो शारिक हंस दिए, फिर समझाने वाले अंदाज में बोले, उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया तो मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। तुम बहुत छोटी थी मुझसे, उम्र का ये फर्क मैं जानता था, इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि तुम कोई कदम उठाओ। तुम्हारे आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात मुझसे पोशीदा नहीं थे, और मैं डरता था कि कहीं मेरे इजहार से ये ना हो जाए कि मेरी वापसी मुमकिन ना रहे। छुपाता था अपने एहसासात को तुमसे, तुम्हें इग्नोर करके, तुम्हें डांट के, वरना तो पहले ही दिन से तुम्हारी सादगी और लापरवाही मुझे पसंद आ गई थी। हंसती मुस्कुराती अलीना। मैं हैरत से आंखें खोले शारिक को देख रही थी, फिर नजर नीची करके बोली, अब भी तो उम्र में फर्क है, अब तुम भी मेच्योर हो। शारिक बोले, लेकिन अलीना सरफराज हार मानने वाली नहीं थी। दोनों हाथों से आंसू साफ किए और बोली, मैं जा रही हूँ पाकिस्तान से, मुझे आप तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं, प्लीज आप जाएं यहाँ से। मैंने आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों से शारिक को देखकर कहा। अंदर से भाईजान शारिक की आमद पर बाहर आए थे और उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। ओह खुदाया, ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा। अम्मी ने आकर मुझे प्यार से गले लगाया और बोली, बेटा काफी दिन पहले जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि सारा का फोन आया था, तो उसने काफी बातें की मुझसे। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी, लिहाजा सारा ने ही ये मशवरा दिया था कि शारिक से तुम्हारे रिश्ते की बात करें, और इससे पहले कि हम कोई फैसला करते, शारिक ने खुद फरहान से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया, और शारिक से बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा अम्मी। मैंने शिकवा किया तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती थी तुम्हारी मर्जी। क्या? मैं हैरत से बोली, हाँ सारा ने बताया था। उफ, सारा की बच्ची, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। क्यों? उसका क्या कसूर? उसने तो भलाई ही की है ना। लेकिन अम्मी, मैं अब ऐसा नहीं चाहती, आप उन्हें मना कर दे। बेवकूफ मत बनो। अगले हफ्ते वो अपनी बहन को लेकर हमारे घर आ रहा है, सारी बातें तय हो जाएंगी और इंशाल्लाह जल्द ही शादी भी कर दूंगी। मैंने अम्मी की गोद में सर रखा। जाते हुए शारिक अहमद ने जो यूँ अम्मी से लाड उठवाते देखा तो देखकर मुस्कुरा दिए, वैसी ही मुस्कुराहट जो इनकी शख्सियत का खासा थी।